Good morning, class 11. 2 days before, I sent you a video explanation of your first chapter in your textbook Hornbill, The Portrait of a Lady. Means this page you are just seeing here, I have made you understand. But for the new students, I am making you understand the summary of this page as Khusband Singh, the writer of this chapter, describing in the story the portrait of a lady. Portrait of a lady means a description of his own grandmother. Portrait means he is just describing the character of his grandmother, the good qualities of her, the loving nature of her, and all those means the good memories he had with her. Here, the very easy chapter, you can understand this space easily that his grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old. She means that grandmother, she was old and wrinkled for 20 years. The meaning of 20 years here, that from his childhood means writer's childhood, from he had known her, she was old and wrinkled. Pupil said that she was once young and pretty, but writer he was not believing at all, and he did not believe that she had a husband, and hard to believe that grandfather's portrait, it was hung over the mantelpiece of the drawing room, was the husband of his grandmother. Means for a child, for a child, it was unbelievable for him to understand and accept that grandmother who had become old, ever she was pretty. Now he is describing here, in the last video I made you understand, and here the physical description of her. In this page, old, so terribly old that she could not have grown older. For him, for Khushband Singh, the writer, she was so terribly old. इतनी old थी वो that she could not be old ever. Means जो अभी आगे वो old नहीं हो पाती. And had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty. Means she was not ready to believe that she was ever pretty, but she was always beautiful. But in the contrast of her, his thought, he is saying, Khushband Singh, that she was always beautiful. Means being a lady, being grandmother, she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her base to balance her stoop and the other telling the beads of rosary. So what she did in the house, she used to walk here and there by doing her work, household work and all, with holding her back with one hand, and from the other hand the beads of her rosary. Means जो जपने वाली माला होती है उससे वो उसको अपने मंत्र जपा करती थी. Her silver locks means जो उसने बालों का जूड़ा बनाया है, were scattered and tidily over her pale puckered face. उसका जो बालों का जूड़ा था वो उसके फेस पे पीछे से कुछ दिखाई देता था. And her lips constantly, regularly, continuously moved inaudible. Inaudible means the things we cannot hear properly. धीरे से बोलना बहुत. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. Means he is just giving the metaphor for her that she looked like a landscape in the mountains. An expanse of pure white serenity. An expanse means बहुत बड़े में फैला हुआ, pure. वाइट सैरेनिटी मीन्स पवित्रता की तरह. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो सांस लेने में कुछ सेटिस्फैक्शन हो रहा हो, पीस हो रहा हो. कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन. हिज ग्रैंड मदर एंड ही वर गुड फ्रेंड्स. ही सेइंग, Khusband Singh, the writer, that they were good friends.
His parents left him with her when they went to live in the city. Means grandmother and writer. They lived in a village. And they were constantly together. She used to wake him up in the morning and get him ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed him, in the hope that I would listen and get to know it by heart. जब भी राइटर की ग्रैंडमदर उसको तैयार करती थी स्कूल के लिए, कंस्टेंटली शी यूज टू से प्रेयर इन होप, किस होप में कि वो सुनेगा और उसको याद कर लेगा इस सारे काम में। जब वो उसको बात करा रही हैं, ड्रेसअप कर रही हैं, एवरी टाइम शी यूज टू से द प्रेयर। I listened. Writer is saying that he listened because he loved her voice. Why he listened? Because he loved the voice of grandmother, but never bothered to learn it. लेकिन उसने कोशिश नहीं की, वो परेशान नहीं था, कभी भी परेशान नहीं था इस चीज़ के लिए कि वो उसको लर्न करेगा। Then she would fetch his wooden slate, which had already washed and plastered with yellow chalk. It was the old time, and at that time that was not the period of books and copies, pen and pencil, laptop and computer. Children used to write on slate with chalk, and that slate, it was just plastered with white yellow chalk and a tiny earthen ink pot, एक छोटा सा मिट्टी का, earthen means मिट्टी का बना हुआ ink pot, उसमें एक रेड पेन और वो बंडल उसको दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, और ब्रेकफास्ट क्या होता था? थिक मीन्स मोटी से, स्टेल मीन्स जो रात में बनी हो, मीन्स बासी। चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। वी वेंट टू स्कूल। वी मीन्स ग्रैंड मदर विद हिम, दोनों स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। अपने साथ में कुछ स्टेल चपातीज ले जाती थी बची हुई, गांव के जो डॉग्स थे उनको डालने के लिए। ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद हिम बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। इसलिए जाती थी ग्रैंड मदर क्योंकि वो टेम्पल से अटैच था। जो प्रीस्ट था उनको अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे मॉर्निंग प्रेयर में, वाइल द चिल्ड्रन सेट रोज ऑन ईदर साइड और द बरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। कोरस मीन्स साथ में गाना, तेज आवाज़ में और साथ में गाना। ग्रैंड मदर सेट बिसाइड इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और ग्रैंड मदर बैठती थी कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए। When they had both finished, they would walk together. This time the village dogs would meet us. Us means to them at the temple door. They followed them to their home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. जो उनको रास्ते में कुछ स्टेल चपाती डाली जाती थी, उन पर लड़ते हुए, उनका पीछा करते हुए डॉग्स उनके घर तक आते थे। When parents were comfortably settled in the city, when the parents of Khushband Singh, they settled comfortably in the city, they sent for us. Us means grandmother और खुशबंत सिंह दोनों को ही सिटी में बुला लिया गया था। That was a turning point in their friendship, और ये टर्निंग पॉइंट था, मीन्स वहाँ से उनकी लाइफ में कुछ नया आने वाला था। Although they shared the same room, शहर में भी उन्हें सेम रूम शेयर करना था। ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अभी ग्रैंड मदर साथ में स्कूल नहीं आ सकती थी। ही यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। नाउ ही वॉज एडमिटेड इन इंग्लिश स्कूल एंड वेंट टू बाय बस। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक द फीडिंग स्पैरोज इन courtyard of their city house. अभी डॉग्स नहीं आते थे रास्ते में उनका पीछा करते हुए। दैट इज़ वाई शी यूज टू फीड, वो डालती थी खाने के लिए कुछ जो स्पैरोज उसके घर के आंगन में आते थे। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, कुछ समय निकल गया। दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को कम देखने लगे। मीन्स बच्चा जो था वो अपनी पढ़ाई में थोड़ा बिजी हो गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू बेक हिम अप एंड गेट him ready for school. When he came back, she would ask me what the teacher had taught. कुछ दिनों तक तैयार किया, जब आता था तो पूछती थी
द ग्रैंड मदर की आज क्या पढ़ा है स्कूल में. ही वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स. राइटर अभी उसको बताने लगा था कि वो इंग्लिश वर्ड्स पढ़ता था. A little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. But these scientific factors ये उसको unhappy करते थे. She could not help him with his lessons. First thing है क्योंकि वो उसको उसके lesson में help नहीं कर सकती थी. She did not believe in the things they taught at the school, English school, and was distressed that they were no teaching about God and scriptures. फर्स्ट थिंग वो इंग्लिश स्कूल में बिलीव नहीं करती थी, साइंस में बिलीव नहीं करती थी. दैट इज़ वाई शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, क्योंकि उसके स्कूल में भगवान और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा था. उसको लग रहा था क्या है ये, कुछ नहीं है पढ़ाई. वन डे ही अनाउंस्ड, राइटर अनाउंस दैट दे वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, कि अभी उसको म्यूज़िक लेसन मिलने वाले हैं. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. इससे ग्रैंड मदर और डिस्टर्ब हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि उसके लिए म्यूज़िक एक नीचे दर्जे के लोगों का काम था. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स. हार्लोड्स मीन्स the lady, they just means used to have the professional singer, and beggars not meant for gentle folk. तो ये अच्छा काम नहीं था. She had nothing but her silence made disapproval. कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उनका जो साइलेंस था ना, उसने उसको बना, मतलब उनका साइलेंस इस चीज़ के लिए डिसअप्रूव कर रहा था. शी रेयरली टॉक टू हिम आफ्टर दैट. उसके बाद में राइटर से बात करना कम कर दिया. व्हेन ही वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अभी दादी से कुछ कॉमन लिंक था, वो भी टूट गया था. ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. अपना चरखा चलाती थी, शायद ही किसी से बात करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो. सिर्फ आफ्टरनून में थोड़ा रिलैक्स होती कि वो अपने स्पैरोज़ को उन्हें फीड कराना था. वाइल शी सेट इन द बरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू बिट्स, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Bedlam means the continuously sound of sparrows, means the singing of sparrows. Some came and perched. Perched means sat on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. Smile करती थी ओनली, कभी उनको भगाती नहीं थी यहाँ से. It used to be the happiest hours of the day for her, and feeding sparrows like this, they were the happiest hours for her. When he decided to go abroad for further studies, आगे की स्टडीज़ के लिए जब राइटर को अब्रॉड जाना था, he was sure grandmother upset होगी. He would be away for 5 years, 5 साल के लिए बाहर, and her age one could never tell. और उनके एज में कोई नहीं कह सकता कि वो ग्रैंड मदर से वापस मिलेगा. बट ग्रैंड मदर कुड. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, परेशान भी नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस. आई, कुछ भी इमोशंस नहीं दिखाए. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. साइलेंटली शी किस्ड his forehead, माथे को चूमा. And when he left, he cherished the moist imprint as perhaps the last sigh of physical contact between us. जब वो जा रहा था तो उसको लगा कि शायद ये मेरी दादी से मेरा लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है, शायद मैं उनसे ना मिल पाऊँ. बट दैट वॉज नॉट सो. ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर 5 years ही केम बैक होम एंड वॉज मेट ग्रैंड मदर. उसको स्टेशन पर मिली. She did not look at a day older. उतनी ही बूढ़ी थी. She still had no time for birds. अभी भी बोलती नहीं थी. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. जब मैंने उनको गले लगाया तभी भी उनकी प्रेयर्स मैं सुन रहा था. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with
her sparrows of his arrival. Her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. In the evening, a change came over her. अचानक उस दिन शाम को कुछ हुआ. She did not pray. उसने प्रेयर करनी छोड़ दी. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. Means since before she used to say that singing, music, it's what not a good folk, and from that day she began the music, beating drum and singing loudly. For several hours he thumped the sagging skins of the dilapidated drum. Sagging skins means जो कुछ एनिमल्स की स्किन से कुछ खाल लगी रहती है, जो स्किन से ड्रम का दोनों साइड बना होता है, उसको थम्ड मीन्स हाथ से पीटने के लिए उसको करती रही. एंड सैंग अ होम कमिंग ऑफ बैरियर्स, और गाने गा रही थी कि जैसे कुछ योद्धा अपने घर लौटे हों. दे हैड अ परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. उन्होंने कोशिश की कि उसको रोकें. ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स वो अपने ऊपर स्ट्रेस दे रही थी, मेहनत कर रही थी. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रेयर. पहला टाइम था जब उसको लगा कि वो प्रेयर नहीं कर रही थी उस समय. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. नेक्स्ट मॉर्निंग में बीमार हो गई. इट वॉज द माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड देम दैट इट वुड गो. डॉक्टर ने कहा ये चला जाएगा. बट ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. उनका सोचना कुछ अलग था. उन्हें लग रहा था उनका एंड अलग है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज टू हर द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ शी हैड कमिटेड टू प्रेयर. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. Means at that time she was just doing the prayer and she did not want to waste a single minute for talking to the family members. They protested, means the family members, they protested, but she ignored their protest. She lay peacefully in bed praying, telling her beads. Even before they could suspect, her lips stopped moving and रोजरी फेल फ्रॉम लाइफलेस फिंगर. इससे पहले कि वो कुछ और कर पाते, जो माला थी वो उनके हाथ से गिर गई. लिप्स स्टॉप्ड मूव द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस. एक शांति सी फैल गई उनके फेस पर. एंड दे न्यू दैट शी वॉज डेड. उन्होंने उसको बेड से उतारा, जो कस्टम था मीन्स जो उनका संस्कार होना था. उनको ग्राउंड पर डाला, कवर किया उसको रेड श्राउड रेड सॉल से, और कुछ मिनट के बाद में मॉर्निंग किया. मॉर्निंग MOURNING मीन्स शोक किया. दे लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल. फिर उसके अंतिम संस्कार के लिए तैयारी की. इन द इवनिंग दे वेंट टू हर रूम एंड क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड. उसका कुछ जो अर्थी होती है उसको लेकर आए, बिठाया, उसको लिटाया. उसको जो सन था वो भी जा रहा था. बरामदे में उसकी ब्लैज पड़ रही थी गोल्डन लाइट की. दे स्टॉप हाफ वे इन द कर्टयार्ड. रुके पूरे बरामदे में जहाँ पर वो थी. शी ले डेड स्टिफ्ड रैप इन अ रेड श्राउड. जहाँ वो पड़ी हुई थी. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. हजारों स्पैरोज आज बिखरी हुई सी पूरे फ्लोर पर बैठी थी. देयर वॉज नो चिरपिंग, बट अ सिंगल स्पैरो वॉज नॉट चिरपिंग. दे फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रेड ऑफ फॉर देम. शी ब्रोक इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू. मदर लेकर आई, ब्रेड के पीसेस डाले, थ्रू टू दैम. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. बट स्पैरोज को कोई नोटिस नहीं लिया उन्होंने. एंड व्हेन वी कैरीड ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब उसकी डेड बॉडी को ले गए वो चुपचाप उड़ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर ने उस बरामदे को साफ करके ब्रेड के क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया. मीन्स द चैप्टर इज एंडिंग हियर एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ शी लिव्ड एंड हाउ शी डाइड. एंड if you have any problem then you can ask. And after understanding the video properly, first you understand these exercise question answer, and is there any problem in writing the answers yourself, in writing the notes yourself, you can talk to me.
And one more thing, class 11, now you have to make the notes yourself as possible. If there is any problem, then I will provide. Okay.